Today's lesson, we are studying about the post-colonial literature. We have already finished some of our stories, and today we are going to study another story that's about the Dream on Monkey Mountains. It's written by a well-known Nobel laureate, and his name is Derek Walcott. ने जो है ये स्टोरी लिखी है डेरेक वॉलकोट ने. It's a wonderful story. By the way, first of all, we will go and see why the name of the story is Dreams on Monkey Mountain. Dreams means beta calf, and monkey means they are bandar ya monkeys. And second one about mountain means pahad. Why is this one the name of the story? Because this person actually, who is the protagonist of the story, he is a black African guy. And they are resembling, actually, they are being resembled with the people who are living on mountains. And the people who are living on mountains, they are more like monkeys because they are very much attached with the nature. So it's a type of analogy given by Derek Walcott about the people who are black. Actually, they are very close to the nature. They are not very developed and they are not very modernized. And second thing, where they are living, actually, it's a mountainous area. Mountainous area means it's not a very developed area. And their life is also very tough. So there are so many analogies that we can develop because of the name of the story. Yeah, that's why it's called Dreams on Monkey Mountains. First of all, we will go to see the overview of the story. That is called the summary. And after that, the introduction, actually. And after that, we will go and see the summary of the story. Are you ready for that? Yes, sir. Okay, here we go. First of all, we'll go to the overview. Dream on Monkey Mountain, an example of post-colonial literature, is a 1970 play by the Nobel Prize winning poet and playwright Derek Walcott. यानी 1970 में बेटा उसने इसको लिखा था, and he is a Nobel laureate. The play is an allegory that takes place on an unnamed island in the Caribbean. Caribbean बेटा ये जजीरों का एक जो है वो मजमुआ है. उसके अंदर एक ऐसा जजीरा है जिसका कोई नाम नहीं है. उस जगह के बारे में ये लिखा है, and it's an allegory. Allegory means a type of play which has a meaning different from its surface meaning, like Animal Farm, written by a Russian author. We have the Jonathan Swift's, what's the name of the play? Written by Jonathan Swift. Lemur Gulliver, Gulliver's Travel. वो जो लंबा सारा आदमी होता है, सफ़र पे जाता है, मुख्तलिफ सफ़र करता है, कभी बड़े जजीरे पे पहुंच जाता है, कभी छोटे जजीरे पे. तो एलिगरी जो है ऐसी स्टोरी होती है बेटा जिसमें जो सरफेस information है that is actually different from the information which is actually being desired to give to the people. जो information असल में हम चाह रहे लोगों को मिले, उससे हट के हम जो है वो लिखें, लेकिन लोग उससे समझ जाए, that is called allegory. Like you have so many cartoons in the newspapers. They're all allegories because sometimes the rules are the governments, they are very strict. They don't allow journalists or other writers to write against them. And on the other side, they are doing so many they are taking so many ill steps in the society, which the people don't like, or the people, they are suffering because of those steps. So then those who have this sort of sympathy with their people and with their society, they try to convey to the government in hidden words what actually they are doing is not right. So this hidden way of communication by giving a different surface meaning and a meaning that's deep inside is a different one, that is called actually allegory. Is clear to everybody now? It's an allegory actually where a jailed self-hating black man, जहाँ एक सजा याफ्ता काला जो आदमी है, अफ्रीकन मैन, as a dream उसको एक ख्वाब आता है in which जिसमें a white goddess convinces him, एक सफ़ेद देवी उसको इस बात पे कायल करती है to become an African king, कि वो अफ्रीका का बादशाह बन जाए. With his former jailer, अपने जो पुराने जो जेल के साथी हैं या उसका जो साथी था, as his new enforcer, उसकी हुकूमत और उसकी बादशाहत को चलाने वाला. Is clear to everybody? This is actually the summary of this
Dream on Monkey Mountain. This is summary of this fiction, actually, allegory. Here we go. This guide refers to 1971 edition of the text from the Dream on Monkey Mountains and other place. Here we go. And now we see the plot summary, actually. And you need to be very careful. It would not be simple. The names would be different because it's been, it's about African culture, African names. तो नाम ऐसे बेटा मुख्तलिफ होंगे हमारे कल्चर से या इंग्लिश नेम से. इस चीज़ को आपने फॉलो करना है. नेम्स की वजह से आपका जो स्टोरी लाइन को फॉलो अप है वो टफ ना हो जाए. आफ्टर अ शॉर्ट एपिग्राफ, छोटी सी जो है वो गुफ्तगू के बाद, एपिग्राफ मीन्स अ शॉर्ट पोइट्री आर सम फ्यू लाइन्स विच आर नॉर्मली स्पोकन बिफोर अ ट्रामा और अ प्ले स्टार्ट्स. आफ्टर अ शॉर्ट एपिग्राफ, अ कोट बाय मार्टिनिक पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रांस फैनन. ये हमने पढ़ा है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर. नॉट यू एक्चुअली, योर सीनियर्स. उन्होंने पढ़ा बेटा फ्रांस फैनन. ही वाज अ पोस्ट कॉलोनियल राइटर. The play opens with a chorus singing a call and response while dancers cross the stage. ड्रामे के शुरू में बेटा एक कोरस जो है वो इसकी इब्तिदा करता है. कोरस मीन्स some people, they are singing together. Now we have mashallah loudspeakers in our activities, but in previous ages when there was no electricity and there were no loudspeakers, people used to get together. They make a circle actually and they all sing together so that their voice would be louder enough to reach to the back audiences. It's clear? Our back audience. So क्या होता है कि कोरस जो है वो गुनगुनाता हुआ आता है और एक आवाज़ आती है और फिर उसका जवाब आता है, जबकि जो कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं वो स्टेज को क्रॉस करते हैं. थिंक अबाउट द अफ्रीकन वेज ऑफ लिविंग, यानी वो जैसे वो हिलते होते हैं, जो तरह की उनकी ड्रेसिंग होती है, वो स्टेज से गुजरते हैं. टू जेल सेल्स अपीयर, दो जो है वो जेल के डब्बे या आप कह सकते हैं वो खाने जो है वो आते हैं जहाँ लोगों को बंद किया जाता है. वन होल्ड्स टाइगर एंड सोरस. एक के अंदर जो टाइगर एंड सोरस को बंद किया होता है, ये उनके नाम है बेटा. ब्लैक मैन, ये काले आदमी है इन जेल में फॉर थीवरी, उन्होंने चोरी की होती है. एंड द अदर इज एम्प्टी, और दूसरा जो है ये एम्प्टी होता है. द रेशियल कॉर्पोरल लेस्ट्रेट अपीयर्स, और इसके बाद एक पुलिस वाला आता है. ड्रैगिंग मकाक, एन ओल्डर ब्लैक मैन, मकाक को खींचते हुए. whom he throws into the empty cell, उसको फिर वो उस खाली जो कैद करना होता है उसमें फेंक देता है, उसमें बंद कर देता है. लेस्ट्रेक आर्ग्यूज विद द अदर प्रिजनर्स. लेस्ट्रेक जो है वो दूसरे कैदियों के साथ अब आर्ग्यूमेंट करता है. whom he views as animals, जिनको कहता है आप लोग तो जानवर. एंड देन होस्टेस एन इम्प्रोवाइज्ड ट्रायल, और फिर उनका जो है वो खुद साख्ता एक मुकदमा चलाता है. Okay. Now we need to know what is this Lestros actually. ये वो जो पुलिस वाला आया वो उनका मुकदमा चलाता, बट इम्प्रोवाइज्ड, जो खुद साख्ता होता है, खुद उसने जो भी फैसला कर देना. इट्स जस्ट अ डमी ट्रायल वी कैन से. मकाक टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड. मकाक जो है वो बड़ा थक जाता है, उसको खींच के लाया जाता है और कंफ्यूज होता है. जस्ट वांट्स टू रिटर्न टू हिज होम, अपने घर वो बेटा वापस जाना चाहता है. ऑन मंकी माउंटेन, उस पहाड़ के ऊपर. ही क्लेम्स एन अपैरिशन ऑफ अ वाइट वुमन इंस्पायर्ड हिम. वो कहता है कि मैं जो है वो अपने अमाल को ठीक करूंगा, जो भी गलती आप समझते मैंने की है, क्योंकि मुझे एक सफ़ेद खातून ने इंस्पायर किया है कि जो है आप अपनी चीज़ों को ठीक करें, मामलात को. तो अब मैं नहीं करूंगा, मुझे वापस जाने. मकाक ड्रीम्स ऑफ अ टाइम बिफोर हिज अरेस्ट. अपनी पकड़ने से पहले एक वक्त के बारे में वो ख्वाब देखता है. हिज फ्रेंड मस्टिक फाइट्स मकाक ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द हाउस. उस ख्वाब के अंदर देखता है कि मेरा एक दोस्त है मस्टिक, वो मुझे अपने घर के बाहर ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ पाता है. रिकवरिंग फ्राम अ फिट, जो मैं यानी बेहोशी की हालत से जो है वो रिकवर हो रहा होता हूँ. मस्टिक एनकरेजेस मकाक टू कम टू द मार्केट. वो उसको कहता है मार्केट में चलते हैं. ये ख्वाब के अंदर है बेटा सारी बातें. वेयर दे विल सेल द कोल मकाक हैज प्रोड्यूस्ड, जहाँ वो उस कोयले को सेल करेंगे जो मकाक ने पैदा किया है या उसने जो है वो प्रोड्यूस किया है, निकाला है ज़मीन से. बिकॉज इन अफ्रीका एक्चुअली द पीपल दिस सेलिंग एंड डिगिंग कोल इज वन ऑफ देयर प्रोफेशन. मकाक remembers a dream in which the apparition of a white woman told him to go to the Africa. वो कहता है मुझे
एक दूसरे ख्वाब का भी उसको याद आता है जिसमें एक वाइट खातून उसको कहती है कि अफ्रीका में वापस जाओ। मकाक अनाउंसेस हिज डिजायर टू डू सो। फिर मकाक कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वापस अफ्रीका में जाना चाहता हूँ जेल से निकल के। ऑन अ कंट्री रोड, वापसी जाते हुए देहात के एक रोड के ऊपर, मस्टिक फाइंड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड अ सिक मैन। मस्टिक जो उसका मकाक का दोस्त होता है वो कुछ लोगों को देखता है कि वो जो है वो बीमार है। सॉरी, कुछ लोग जो है वो एक बीमार आदमी के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हुए। दे लाइट हॉट कोल्स beneath him, उसके नीचे जो है वो क्या उसका नाम है, कोयले को जलाते हैं। होपिंग टू स्वेट आउट द इलनेस कास्ड बाय अ स्नेक बाइट, इस उम्मीद पर कि इसको सांप के काटने से जो बीमारी लगी है उसको वो खत्म कर देगी, इसको पसीना आ जाएगा। अब बेटा ये सारी की सारी चीजें दे आर एक्चुअली गिविंग द वेज द पीपल इन अफ्रीका दे आर लिविंग because of the deliberate attempt to keep them underprivileged and uncivilized by the colonizers, actually. Like we saw in the Heart of Darkness, that how the people they were living their lives, by the way. Mostik offers to fetch his friend, a healer, in exchange for bread and money. Mostik कहता है कि मुझे आप कुछ खाना दे दो और कुछ शहद दे दो तो मैं अपने दोस्त जो कि इलाज करने वाला है उसको ले आऊंगा। The people accept. The Mostik returns with Makak. People उसकी बात मान लेते हैं। मकाक को फिर मोस्टिक जो अपने साथ ले आता है। वो परफॉर्म्स अ हीलिंग सेरेमनी, वो फिर उसको इसके इलाज करने की एक जो रस्म है वो शुरू करता है। The people are so grateful that they shower Mostik with gifts. People इतने उसके जो है वो शुक्रगुजार होते हैं कि मकाक को तोहफे तहाइफ के साथ, यानी बहुत ज़्यादा उसको तोहफे तहाइफ जो है वो दे देते हैं मस्टिक को, यानी जो असल जो पहले होता है। ये सारा बेटा ख्वाब के अंदर बातें चल रही है। मस्टिक वांट्स टू यूज मकाक सीलिंग पावर फॉर फाइनेंशियल गेन। वो चाहता है मकाक के अंदर जो तंदुरुस्ती देने वाली ताकत है, काबिलियत है, उसको मैं माली फायदे हासिल करने के लिए इस्तेमाल करूं। बट मकाक रिफ्यूजेस, लेकिन मकाक जो है वो उससे रिफ्यूज कर देता है। दे हैड टूवर्ड द मार्केट, वो फिर मार्केट की तरफ चले जाते। इट्स क्लियर अप टू हियर टू एवरीबॉडी? ओके, this is all coming in the dream, by the way. At the market में Lestrade and an inspector survey the scene. अब ये वो पुलिस वाला और एक दूसरा एक इंस्पेक्टर के साथ होता है, वो उस सीन को जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते हैं। रूमर्स ऑफ अ पावरफुल हीलर हैव प्रोसीडेड दैम, उन तक जो है वो इस अफवाहों की बात पहुंच चुकी कि बहुत ताकतवर जो हीलर है, जो जख्मों का इलाज करने वाला, बीमारियों का इलाज करने वाला, वो मौजूद है। मस्टिक अपीयर्स, मस्टिक दोबारा स्टेज पे आता है, ड्रेस्ड एज मकाक, मकाक के कपड़े जो है वो पहन के, एंड पुट्स ऑन अ शो एज अ हीलर। वो कहता है कि मैं ही वो हीलर हूँ, ताकि उसको फाइनेंशियल गेन जो है वो हासिल कर सके। व्हेन हिज आइडेंटिटी इज अनकवर्ड, जब पता चलता है कि ये मस्टिक के मकाक नहीं है, द क्राउड सराउंड्स हिम एंड बीट्स हिम मर्सिलेसली एज लेस्ट्रेड वॉचेस। तो फिर जो हजूम है वो बेटा उसको मस्टिक को घेर लेता है और उसको बहुत ज्यादा मारते हैं। और लेस्ट्रेड जो पुलिस वाला वो देखता रहता है। दिस इज फ्रॉम these words actually the writer is trying to give us information how the performance of the police department was there at that time. They were just silent watchers only. They were not willing to go and do the things right. Makak arrives, मकाक आ जाता है and runs to his stricken friend. वो अपने दोस्त जिसको अच्छा खासा पटाई हो चुकी है उसको बचाने की कोशिश करता है। बट मस्टिक डाइज ऑफ हिज इंजरीज, लेकिन वो मर जाता है अपने जख्मों की वजह से। पासिंग अवे इन मकाक साम्स, और उसकी बाहों में ही उसकी जान निकल जाती है। मकाक फॉल्स टू द ग्राउंड इन अफिट, मकाक जो है वो जमीन पर गिर जाता है इस बात से बड़ा परेशान और हैरान होकर, बेहोश होके। यस, सारा ख्वाब है, इट्स ऑन ट्री यानी। बाद में उसको उसकी आंख खुलेगी, उसको पता चलेगा वो तो अभी जेल में ही है। आफ्टर अनदर शॉर्ट एपिग्राफ बाय द फ्रेंच फैनन, अब दूसरे पार्ट के अंदर एक छोटी सी मजीद वो कुछ पोइट्री की लाइन्स बोलते हैं फ्रेंच पैनन की, पोस्ट कॉलोनियल लाइन्स एक्चुअली। मकाक वेक्स अप इन अ जेल सेल अगेन, मकाक्स जो है वो जेल सेल के अंदर दोबारा जो है वो उसको जाग आती है। लेस्ट्रेड वेक्स इन, जो पुलिस वाला उसको जगाता है, अलोंग विद टाइग्रस एंड सोरिस, जो दूसरे दो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं उनके साथ। वो नोटिस दैट मकाक हैज मनी एंड डिसाइड टू रॉब हिम। उनको पता चलता है दोनों को कि मकाक के पास कुछ पैसे और उससे पैसे छीनने की कोशिश करते। दे कन्विंस मकाक टू किल लेस्ट्रेड, वो उसको कन्विंस करते हैं कि लेस्ट्रेड को कत्ल कर दे।
एंड मकाक एग्रीज, और वो एग्री हो जाता है. He feigns illness and then using a hidden dagger stabs Lestrade. वो बहाना करता है कि मैं बीमार हूँ, और फिर एक छुपाया हुआ खंजर जो उसके पास होता है उसके साथ लेस्ट्रेड को मार देता है, कत्ल कर देता है. मकाक releases his fellow prisoners and they escape into the forest. वो अपने जो दूसरे कैदी होते हैं उनको आज़ाद कर देता है और वो जंगल में भाग जाते हैं. लेस्ट्रेड रिकवर्स हिज वाउंड इज ओनली माइनर. उसका चूंकि जख्म बड़ा थोड़ा सा होता है तो लेस्ट्रेड जो है वो उस जख्म से वापस आ जाता है, यानी उसको जो खंजर लगा होता है उसका जख्म ठीक हो जाता है. एंड गिव्स चेज, और उनके पीछे ताकुब करता है उनका. इन द फॉरेस्ट, जंगल में, मकाक्स बिहेवियर बिकम्स इरेटिक. मकाक का जो रवैया होता है वो बड़ा ही अजीबोगरीब बन जाता है. He promises to take Tigris and Soris to Africa and make them generals. वो कहता है कि मेरे साथ आ जाओ आप अफ्रीका में और मैं आपको जनरल बनाऊंगा अपनी फौज के. इसके लिए मकाक लीड्स द अदर इनटू हाइडिंग व्हेन दे हियर लेस्ट्रेड अप्रोच. मकाक फिर जो है वो उनको छुपने वाली जगह में ले जाता है जब उनको पता चलता है वो पुलिस वाला उनके पीछे पीछे है. Becoming increasingly distraught, Lestrade repents his sins and joins Makak's quest. अब लेस्ट्राडे जो है वो थक जाता है, एट द एंड उसको अपने जो उसने गुनाह किए होते हैं उसके ऊपर उसको होती है रिपेंटेंस, होती है शर्मिंदगी होती है, और वो फिर मकाक की जो क्वेस्ट है, जो है कि अफ्रीका में जाके वो बादशाह बनेगा, उसके साथ वो शामिल हो जाता है. मकाक हैज़ आल्सो कन्विंस्ड सोरेस who know also wishes to go to Africa with him. मकाक अब जो है वो सोरेस को भी कन्विंस कर लेता है और अब वो भी चाहता है कि वो भी अफ्रीका उसके साथ जाए. Only Tiger refuses when given the chance to accompany them. लेकिन टाइगर जो है वो जवाब दे देता है कि मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना. इन रिस्पॉन्स उस रद्द अमल में लेस्ट्रेड स्टैब्स टाइगर को वो मार देता है कि भैया आपने हमारे साथ क्यों नहीं जाना. The other leave for Africa. दूसरे लोग अफ्रीका के लिए चले जाते हैं. where the corporal announces that he will enforce the law on behalf of मकाक. जबकि अफ्रीका के अंदर वहाँ जो लोग होते हैं वो इस बात का ऐलान करते हैं कि वो मकाक के बिहाफ पे उसके यानी तरफ से कवानीन को लागू करेंगे, यानी मकाक जो है वो अब वो कवानीन को लेके चलेगा, वो बड़ा है हमारा. क्राउड कैरीज मकाक टू अफ्रीकन कोर्ट एज अ कंकेरिंग किंग. कुछ लोग जो है मकाक को लेके अफ्रीका की कोर्ट में एक फाते बादशाह की हैसियत से ले जाते हैं. लेस्ट्राडे लीड्स द कॉल्स फॉर प्रेज. लेस्ट्राडे जो है उसके नारे लगवाता जाता है रास्ते में, कॉल्स फॉर प्रेज, नारे लगवाना. एंड द क्राउड रिस्पॉन्ड्स जुबिलेंटली बट मकाक इज नॉट हैप्पी. और फिर जो वो हजूम होता है बड़ी खुशी खुशी से उन नारों का जवाब देता, बट मकाक इज नॉट हैप्पी. मकाक खुश नहीं होता. He sees himself as a hollow ghost of his old self. वो कहता है कि अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जो इस बूढ़े जिस्म के अंदर जो मेरी जिंदगी है ये एक यानी जिन की तरह और अंदर से खाली, यानी मेरे पास कुछ नहीं है. लेस्ट्राडे calls prisoners before the king. लेस्ट्राडे जो है वो जितने भी कैदी होते हैं उनको बादशाह के सामने ले जाता है. The first is a list of historical white people, many of whom are already dead. पहले उसमें लोगों की दरबार के अंदर जो है वो ब्लैक लोगों वाइट लोगों को पेश किया बिकॉज ऑफ देयर atrocities and their the calamities they brought to the black people. Here we go. That the list of the white people, they are actually appearing in the black coat. The first is a list of the historical white people. तारीखी जो है वो सफ़ेद लोगों की एक लिस्ट है. Many of whom are already dead. बहुत ज़्यादा उनमें से पहले मर चुके हैं. It's all coming in the dream, by the way. They are condemned for being white and written out of history as punishment. उनको इस चीज़ के ऊपर उनकी मजम्मत की जाती है कि वो वाइट क्यों है और फिर उनको सजा दी जाती है तारीख में. नेक्स्ट, मस्टिक इज ड्रैग्ड बिफोर द कोर्ट एंड अक्यूज्ड ऑफ बिट्रेइंग मकाक ड्रीम. मस्टिक को जो उसका दोस्त होता है उसको भी मकाक के सामने पेश किया जाता है और कहते हैं कि इसने मकाक के ख्वाब के साथ जो है वो धोखा किया. दो ही प्लीड्स विद मकाक, अगरचे वो मन्नत समाजत काफ़ी करता है उसकी, मुझे मार छोड़ दे मुझे. क्लेम्स दैट मकाक हैज़ ग्रोन मैड. वो कहता है कि जो मकाक है वो पागल हो गया है, ओल्ड बूढ़ा हो गया एंड ब्लाइंड हो रहा है. एज अ किंग, एक बादशाह के तौर पे मकाक लुक्स अवे, मकाक जो है वो दूसरी तरफ देख लेता है. मस्टिक इज टेकन अवे टू बी एक्सिक्यूटेड. उसको उसकी गर्दन उड़ाने के लिए उसको ले जाते. फाइनली द ऑपरेशन ऑफ द वाइट वुमन इज ब्रॉट फोर्थ. आखिरकार उसकी जो वो उसने एडवाइस की होती है, मशवरा दिया होता है, वो सच साबित हो जाती है. लेस्ट्रेड डिमांड्स
हर एग्जीक्यूशन एज शी इज अ टेम्पटेशन। लेस्ट्रे फिर उस जो सफेद जो खातून है उसकी कहता है कि इसको भी कत्ल कर दे। ये जो है ना तरगीब देती है लोगों को मुख्तलिफ काम करने की, टेम्पटेशन है। ही एड्स मका का सोड, मका को कहता है कि ये तलवार लो। मका की इंसिस्टेंस ऑन प्राइवेसी एंड व्हेन एवरीवन लीव्स ही एक्जीक्यूट्स द ऑपरेशन। और जब हर कोई चला जाता है तो मकाक उस खातून को जो देवी की शक्ल में उसके सामने आती रही है उसको भी वो एग्जीक्यूट कर देता, उसकी जो है वो गर्दन उड़ा देता। इन दी एपिलॉग द ड्रीम हैज एंडेड। अब उसका ख्वाब जो है वो खत्म हो जाता है। एंड मकाक इज वंस अगेन इन हिज जेल सेल। उसको जो होश आता है दोबारा वो जेल में ही होता है। दिस टाइम इस वक्त व्हेन लेस्ट्राडे आस्क हिम हिज नेम, जब वो पुलिस वाला उसका नाम उससे पूछता है, ही आंसर्ड दैट ही इज फेलिक्स होबन, कि मैं तो बादशाह हूँ फेलिक्स होबन। ही एक्सेप्ट्स हिज आइडेंटिटी एंड व्हेन मस्टिक अराइव्स, जब वो उसका दोस्त आता है, मकाक एंड मस्टिक रिटर्न हैप्पीली टू मंकी माउंटेन। तो फिर वो उधर से जो जेल से छूट के वो खुश खुश अपनी जगह को वापस चले जाते हैं। एंड इस फिनिश में